Guys, welcome to my video lecture. In this video lecture, I am going to talk on animation principles. Before going to start my session, I just want to give the definition of animation. So, what do you mean by animation? So, animation is the process of creating an illustration of any movement by using rapid display images of 2D or 3D artworks. So, dear friends, as I told you, animation is the process, it is a process of creating an illustration of any movement by using rapid display images of 2D and 3D artworks. So, it is an illustration, creating an illustration. Illustration means the reality, it is not a reality, but seems like a reality. So, ये हमारा एनिमेशन का एक शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है जो मैंने आपके सामने रखा. नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन. सो वी हैव 12 basic principles of animation, which was first introduced by Disney animator called Olio Johnston and Frank Thomas in their book. The book name was The Illustration of Life, a Disney animation. It was first released in 1981. सो हमारे पास 12 बेसिक प्रिंसिपल है एनिमेशन का, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था डिज्नी एनिमेटर के द्वारा, जिनका नाम दिया गया है ओलियो जॉनस्टन एंड फ्रैंक थॉमस, जिन्होंने अपने बुक में ये 12 प्रिंसिपल्स का जिक्र किए थे. वो बुक का नाम है द इल्यूस्ट्रेशन ऑफ लाइफ डिज्नी एनिमेशन. ये डिज्नी एनिमेशन का बुक है एंड दिस बुक वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1981. सो वी हैव 12 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन. These are the 12 basic principles of animation. We have to see one by one. First one is called squeeze, stretch. Second one is anticipation. Third one is stagging. Fourth, straight ahead action and pose to pose. Next we have follow through and overlapping action. Next we have slow in, slow out. Then we have arc. Then again we have secondary action. Then timing, exaggeration, then solid drawing, and last we have appeal. So, these are the 12 basic principles of animation. Let us see one by one. Squeeze and stretch. The squeeze and stretch is one of the basic principle of animation among all 12. It is one of the basic or most important principle of animation among 12. The squeeze and stretch principle gives the illustration of weight and volume to a character as they move. That means this principle give the illustration of weight and volume to a character as they move. इस तरह का जो एनिमेशन का जो प्रिंसिपल है, दो बातों पर फोकस डालते हैं, वेट और वॉल्यूम पर, जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करता है तो. So, this principle is done
by expanding and compressing, किस तरह से? Done by expanding and compressing the character's body. That means this principle, under this principle we have done by expanding and compressing character's body. Let us consider the example here. So we have a bouncing ball which having a weight and a volume, when appears, which appears stretched. वो bouncing ball हमें appears stretched when falling and moving up. जब वो गिरता है बॉल नीचे की ओर या ऊपर की ओर उठता है तो उसमें स्ट्रेच, तनाव उत्पन्न होता है। लेकिन जब वो जमीन पर हिट करता है, जब वो जमीन को टच करता है, उसको हिट करता है, तब वहां पर वो स्क्वैच्ड होता है, यानी कि उस पर दबाव पड़ती है, वो दबता है। एंड दिस इज कॉल्ड स्वेच एंड स्ट्रेच प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में है एंटिसिपेशन। सो एंटिसिपेशन ये प्रिंसिपल्स के द्वारा मतलब एंटिसिपेशन प्रिंसिपल के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का एक्चुअली मेन एक्शन क्या है। हम इसे पढ़ेंगे, इस पॉइंट को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। एंटिसिपेशन हेल्प्स टू प्रिपेयर द व्यूअर फॉर व्हाट्स अबाउट टू हैपन। क्या होने जा रहा है उसके लिए उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना, एंड दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सी दिस इमेज। एक प्लेयर है, वो बॉल को अपने पैर से किक करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, लेकिन उसको मारने के लिए उनका जस्ट सी द बॉडी एक्शन। दिस ऑल मूवमेंट्स आर देयर। सो एंटिसिपेशन क्या कहता है? अपने मेन एक्शन के लिए अपने आप को जो तैयार करते, प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेशन। So anticipation is used to realize the audience to know that major action is what to take place. जिस तरीका से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लेयर अपने पैर को पीछे की ओर कर रहे हैं, हाथ को दूसरे डायरेक्शन में ले रहे हैं, दैट मीन्स ही इज मेकिंग हिमसेल्फ रेडी टू किक द फुटबॉल। सो दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेशन। सो जस्ट रीड दिस पॉइंट। Imagine you are about to kick a soccer ball. What's the first thing you do? क्या हम लोग करेंगे? Do you swing your foot back to wind? जो हमने यहाँ पर देखा। Steady yourself with your arms. Arms का हम लोग अपने बाजू को उठाएंगे ऊपर की ओर। That is called anticipation. That's anticipation. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Anticipation. यानी कि डियर फ्रेंड्स, एंटिसिपेशन क्या होता है? यानी कि जो मेन एक्शन, जो मेन काम करने के लिए उससे पहले जो हम प्रिपरेशन करते हैं, वो प्रिपरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंटिसिपेशन कहते हैं। जैसे कि इस इमेज में हम लोग देख रहे हैं कि एक फुटबॉल प्लेयर है जो बॉल को हिट करना चाहता है। किक करने के लिए वो अपने लेग का मूवमेंट करता है, हैंड का मूवमेंट करता है, बॉडी का मूवमेंट करता है, उसके अनुसार दैट्स action or that preparation is called the anticipation. I hope it is clear. Let's see the definition here. Anticipation is the preparation for main action. So what is the main action here in this? To kick the football. In this image, the main action is to kick the football. For that, this player, what he did? He prepared himself. What is the preparation? Movement of the leg and arms. That is called anticipation. Now let's see the next principle,
स्टैगिंग। स्टैगिंग क्या कहता है? से स्टैगिंग प्रिंसिपल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल every pose or action of the characters that he makes should convey a clear intention। यहां पर दो चीज को हम ध्यान देना चाह रहे हैं, every pose or action convey clear instruction। फिर से मैं इस बात को आपके सामने रखना चाह रहे हैं, every pose or action should convey clear intention। That means staging is a principle of an animation which has, by this principle we are able to give the clear intention in the animation, to provide the clear intention, that means what this image going to be taught. So there will be no confusion, there will be no misunderstanding, it should be clear intention for what purpose this animation is done. So staging principles talks about this. Let us consider this example, this image here. By the action, by pose itself, it shows that he is giving a clear instruction that he is going to be do something. He is going to be do or write something on the some place. So by pen itself, it shows that it is going to be do something or write something on the blackboard. So it is a clear intention. By looking this image, we one idea came in our mind that this person is going to be write something on the board. So without any confusion, that pose and action giving a message. So that is called staging. Now we have next in principle of animation, that is called straight ahead action and pose to pose action. So there are two ways to handle drawing animation, that is called straight ahead and pose to pose. Straight ahead and pose to pose both has its own benefits. Let us see one by one. Straight ahead. So straight ahead क्या कहता है? Straight ahead action involves drawing frame by frame from start to finish. Let us see this image. Consider this image. Straight ahead में क्या होता है? इस प्रिंसिपल में क्या होता है? हम लोग जो फ्रेम का जो डिजाइनिंग करते हैं वो स्टार्ट से लेकर एंड तक हो जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट, this is second, this is third and this is fourth. So we have a 4 frame here and it's showing one person is getting standing up. So first frame थोड़ा सा उठा, second frame में उससे ज़्यादा उठा, third frame में और थोड़ा उठा and fourth frame में वो completely ही stand ahead. So that is the example of the straight ahead. That means straight ahead action involve drawing frame by frame from last to finish. यानी कि लास्ट से लेकर के फिनिश होने तक हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम हम लोग क्या करते हैं, इमेज को हम लोग सीक्वेंस में अरेंज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट अहेड एज वी हैव सीन इन दिस इमेज. सो हमारे पास कितने फ्रेम यहाँ पर है? 4 फ्रेम है. कितने फ्रेम आ रहे हमारे पास यहाँ पर? 4 फ्रेम है. 1 2 3 एंड दिस वन 4. सो वी हैव अ 4 फ्रेम्स हियर. पहला फ्रेम क्या है? बैठा हुआ व्यक्ति है. दूसरा फ्रेम में थोड़ा सा उठा है. तीसरा फ्रेम में और थोड़ा उठा एंड फोर्थ फ्रेम में कंप्लीटली उसको खड़ा करके दिखाया गया है.
एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट अहेड। पोज टू पोज क्या होता है, इसमें क्या दिखने मतलब हम लोग को दिखाने का कोशिश किया जाता है, बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल इन एनिमेशन you draw the beginning frame and end frame. Dear friends, only we have to see the beginning frame and end frame. See this image. We have first frame and this one last frame, beginning and end. ठीक है, कहता है and few key frames in between. कोई भी की फ्रेम्स होता है जो इन बिटवीन में होता है। दिस टेक्निक्स गिव यू अ बिट मोर कंट्रोल विद इन द सीन्स एंड अलाउ टू इंक्रीज द ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ द मोशन। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट अहेड एंड पोज टू पोज। फिर से मैं एक बार बताने का कोशिश करेंगे आपके लिए। स्ट्रेट अहेड मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी फ्रेम तक हम लोग रीअरेंज करते हैं, ड्रॉ करते हैं, एंड फ्रेम बाय फ्रेम। पोज टू पोज में क्या होता है, बिगिनिंग फ्रेम को हम लोग कंसिडर करते हैं एंड एंड फ्रेम को हम लोग कंसिडर करते हैं। बीच में कोई की फ्रेम हमने दे दिया तो दे दिया। सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज action, and this is also one of the principle of animation. Using this principle we are able to do the animation work. So see here, let's consider this example. We have a list of person moving, actions are given here 1 to 8 all together, but 4 is considered as a straight ahead and पोज टू पोज प्रिंसिपल, स्ट्रेट अहेड एंड पोज टू पोज प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास में है फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। सो फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन, इस प्रिंसिपल में हम लोग ये देखते हैं कि फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन, these are the two different principle but they are still closely related. ये दो अलग अलग प्रिंसिपल हैं लेकिन दोनों को हम लोग साथ में लेकर चलते हैं। According to this principle, इस प्रिंसिपल के अनुसार when a character is in action and stop suddenly, then nothing stops all at once. कहना ये चाह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी एक्शन में है, यानी दौड़ रहा है या काम कर रहा है या वॉक कर रहा है, उसको सडन हम स्टॉप करेंगे, रोकने के लिए बोलेंगे। जब वो रुकेगा तो उसके बॉडी का हर पार्ट उसी रेट से रुक नहीं जाएगा, ये कहना चाह रहा है। लेट्स सी, when object comes to a standstill after being in motion, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होने के बाद वो अचानक रुकता है, then different parts of the object will stop at different rate. यानी कि मान के चलिए एक रनर है, वो दौड़ रहा है और वो अचानक उसको हम रोक देते हैं तो उसके बॉडी के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स होंगे, हैंड्स, लेग्स, हार्ट बीट, हेयर्स, ये जो होंगे वो जो अचानक एक रेट से रुकेंगे नहीं, सभी का जो स्टॉप होने का, रुकने का जो रेट होगा वो डिफरेंट रेट्स होगा, एंड दैट इज कॉल्ड फॉलो थ्रू। ओवरलैपिंग ये कहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रनिंग रेस है, उस रनिंग रेस में हमारे कॉलेज के बच्चे खड़े हैं दौड़ने के लिए लाइन में, तो जब लाइन में वो दौड़ने के लिए खड़े हैं तो जैसे दौड़ना वो शुरू करते हैं, तो उस दौड़ने शुरू जब करते हैं तो दौड़ना शुरू करते हैं उस वक्त जो हमारा पैर का जो
रेट होगा, मूवमेंट रेट, हमारा हैंड का मूवमेंट रेट, हमारा हार्ट बीट का मूवमेंट रेट, हमारा बॉडी का मूवमेंट रेट, हमारा हेयर का मूवमेंट रेट, ये सभी का क्या होगा, अलग अलग होगा, एक साथ सेम नहीं होगा. एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करेंगे. सो कहा जा रहा है कि एक बॉडी है, as a character comes to a stop from a walk, every part of the body would not stop at the exact same time. Instead, arms they may continue forward before coming to settle. वही चीज को हम बताने का कोशिश कर रहे हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो हमारा है, मान के चलिए एक व्यक्ति है जो दौड़ करके अचानक खड़ा होते हैं, तो जब वो खड़ा होंगे तो उनके बॉडी का बहुत सारे पार्ट्स जो होंगे स्टिल मोशन में रहेंगे, एंड जो स्टॉपिंग रेट होगी वो बॉडी का सारा एक रेट नहीं होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा. एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉलो थ्रू. उसी तरह से अगर कोई बॉडी है हमारा है, एक व्यक्ति है जो रनिंग रेस के लिए जा रहे हैं, वो शुरुआत में शुरू हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो जब वो दौड़ना जब शुरू करते हैं उस वक्त वो बॉडी का जो मूवमेंट हमारा सभी का एक रेट से स्पीड अप नहीं होगा. एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ओवरलैपिंग एक्शन. सी दिस, कंसिडर दिस एग्जांपल. दिस इज अ ओवरलैपिंग एक्शन का एग्जांपल है. जैसे क्या है, इफ ए बॉडी रेज देयर आर्म्स अप टू वेव, हाथ ऊपर की ओर उठा रहे हैं, द सोल्जर विल मूव फर्स्ट. अगर हम हाथ को ऊपर की ओर उठाना चाहते हैं, सबसे पहले सोल्जर हमारा उठेगा, देन आर्म्स बाजू उठेगा, देन एल्बो, देन हैंड्स, देन लेग्स एंड फ्यू फ्रेम्स. सो सी हियर कैसे हम लोग उठाना शुरू किए हैं. सो दैट इज कॉल्ड फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन. सो दिस इज वन basic principles of animation. Now we have slow in, slow out. Slow in, slow out is another principle of animation. In this, we are going to consider an example like a car. इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एज एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन मूव और कम्स टू ए स्टॉप, देयर नीड टू बी टाइम फॉर एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन. अगर कोई भी व्यक्ति रुकता है अचानक या वो दौड़ना चाहता है, दोनों के लिए उसे एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है और कुछ टाइम की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लो इन, स्लो आउट. अगर ऐसा नहीं है तो मान के चलो वो व्यक्ति हमें क्या, मूवमेंट क्या है हमारा, अननेचुरल और रोबोटिक है. इस स्लो इन और स्लो आउट प्रिंसिपल को हमें समझने के लिए हम लोग जस्ट कंसिडर ए कार. हमने क्या किया, स्लो इन हमारा कार है, कार को हम जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट जैसे करते हैं वैसे करने के बाद वो क्या फुल स्पीड में चलना शुरू हो जाता है? नहीं, इट फर्स्ट एक्सेलरेट देन गेन स्पीड. दैट इज कॉल्ड स्लो इन. ठीक है, स्लो आउट. सो इट डज नॉट रीच फुल स्पीड इन ए इंस्टेंट. जैसे हम लोग कार को शुरू किए, एक चाबी लगाए, वैसे क्या पूरा स्पीड में ले लेता है? नहीं, हमें एक्सेलरेशन देना पड़ता है, तब वो हमारा कार हमारा स्पीड अप होता है. ठीक उसी तरह से अगर उस कार को अगर हम रोकना चाहते हैं तो सडन हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा. अगर हम सडन ब्रेक लगाते हैं देन डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी. तो क्या करेंगे हम, उसको हम लोग डी एक्सेलरेट कहेंगे. जो ये वर्ड हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, डी एक्सेलरेशन कहेंगे, यानी कि उसकी स्पीड को हम जीरो लाने का कोशिश करेंगे. एंड देन फाइनली हम उसको क्या करेंगे, रोकेंगे. सो दैट इज कॉल्ड स्लो इन, स्लो आउट. सो दिस इज द अनदर प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन. लेट्स सी दिस इमेज.
अगर हम लोग कभी भी बैठते हैं चेयर पर या स्टूल पर, तो क्या होता है, हम लोग का एक्शन जो होता है स्लो इन और स्लो आउट होता है। धीरे से उठते हैं, धीरे से बैठते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अचानक बैठेंगे तो हमें क्या होगा, कभी हम लोग गिर सकते हैं। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्लो इन एंड स्लो आउट। और ये जो प्रिंसिपल को हम लोग एनिमेशन में इस्तेमाल करते हैं एट द बिगिनिंग एंड एंड एक्शन। Let's just see this, consider this example here. We have a pendulum. Now see, the maximum speed will be come to the between, then it goes, speed will be here 0, then here speed will be 0, then it moves here, speed will be the maximum. You understood? That is called slow in slow out. जब ये इस पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन ऊपर की ओर जाएगा तो स्लो होगा, लेकिन नीचे क्या आएगा तो फिर ये स्पीड हो जाएगा। जैसे सी दिस एग्जांपल, व्हेन मूविंग दिस गेटिंग स्लो, मूविंग दिस गेटिंग स्लो, बट दिस इज द फास्ट, दैट इज कॉल्ड स्लो इन स्लो आउट। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट वी हैव आर्क। According to this principle, all actions in life have a slightly circular motion. इस प्रिंसिपल के अनुसार ये कहता है कि हमारे रियल लाइफ में कुछ भी जो भी एक्शन लेते हैं, दैट इज नॉट स्ट्रेट बट स्लाइटली कर्व, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर। सो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर हम को रियलिटी पिक्चर में डालना है ये किसी चीज में, तो हमें आर्क प्रिंसिपल को भी मेंटेन करना पड़ेगा। जस्ट कंसिडर वन एग्जांपल हियर, सी दिस एग्जांपल। अगर हम अपना हेड को टर्न करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो जब हम हेड टर्न करते हैं तो ये क्या होता है, इट्स कह रहा है यहां पर डिप डाउन, क्या कहते हैं, डिप देयर हेड डाउन, मतलब हमारा हल्का सा नीचे बढ़ता है फिर ऊपर की ओर जाता है। दिस इज, दैट इज कॉल्ड आर्क, इट्स मेकिंग एन आर्क। सो आर्क इज द अनदर प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन विच एड द रियलिटी इन द इमेजेस और पिक्चर और वीडियो। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी एनिमेशन। सो सेकेंडरी एनिमेशन क्या होता है उसमें हम लोग देखेंगे। सेकेंडरी एनिमेशन कहता है कि सेकेंडरी एनिमेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि सेकेंडरी एक्शन, सेकेंडरी एनिमेशन प्रिंसिपल यानी कि इट्स प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, ये कहता है कि सेकेंडरी एक्शंस क्या चीज को रेफर करता है, रेफर्स टू क्रिएटिंग अ एक्शन और emphasizing or supporting main action of the animation. That means it's a secondary, it's a supporting, यानी कि this action supporting the main action of the animation. It's a simple to understand. Secondary action जो होता है हमारा supporting फाइल होती है मेन एक्शन का एनिमेशन में। जो भी हम एनिमेशन बना रहे हैं उसमें हम एक सेकेंडरी फ्रेम भी लेकर के चलते हैं टू सपोर्ट द मेन एक्शन। जैसे हमने यहां पर देख रहे हैं सेकेंडरी एक्शंस आर यूज्ड, जैसे यहां पर लिखे हैं आर यूज्ड टू सपोर्ट एंड एम्फसाइज द मेन एक्शन गोइंग ऑन विद इन अ सीन, जो चल रहा है हमारा। लेट अस कंसिडर दिस इमेज, let us consider this image and this image. So first image and second image, this one the first image and this one is the second image. These two people are there, two persons are there,
and they are communicating with one another, but second person is the secondary action or secondary supporting file to the first one. See here example, a person leaning up against a wall talking to some people at college. The main action of the character is leaning against the wall. Main action क्या है? वॉल पर झुके रहना, लीनिंग होना, लीन आउट, झुक गया हमने दीवार पर, एंड टॉकिंग. लेकिन दोनों व्यक्ति बात कर रहे हैं, लेकिन सेकेंडरीज में क्या है हमारा? देन पुटिंग एन एक्शन ऑन देम, द क्रॉसिंग देयर हैंड टू बी द सेकेंडरी एक्शन. लेकिन उसमें एक व्यक्ति जो है अपना हाथ को फोल्ड करके खड़ा है, एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्शन टू द फर्स्ट वन. सो हमारा क्या है? मेन एक्शन क्या है? जस्ट लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. दोनों ही लीनिंग अगेंस्ट द वॉल है, दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने हाथ को फोल्ड करके वहां पर खड़ा है, एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्शन और सपोर्टिंग टू द मेन एक्शन. सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्शन प्रिंसिपल of animation. Next we have time and spacing. So timing refers to the number of frames between two poses. Dear students, kindly try to understand. Timing refers to the number of frames between two poses. यानी कि दो फ्रेम के बीच में क्या टाइमिंग है, कितना समय लग रहा है, यानी कि दो पोजेस के बीच में कितने फ्रेम्स हैं और उस फ्रेम का क्या टाइमिंग है, उसी को हम लोग टाइमिंग कह रहे हैं. यानी कि टाइमिंग रेफर्स द नंबर ऑफ फ्रेम्स बिटवीन टू पोजेस. दो पोजेस के बीच में नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, दैट रेफर्स द टाइमिंग. Spacing refers the how these individual frames are placed. So spacing क्या कहता है? Refers the how these individual frames are placed. इसको कैसे placed किया गया है, that is called spacing. So timing refers the number of frames between two poses. Spacing refers how these individual frames are placed. So दोनों का अलग अलग है. टाइमिंग क्या रेफर किया? नंबर ऑफ फ्रेम्स, दो पोजेस के बीच में कितने नंबर्स ऑफ फ्रेम्स हैं, दैट इज कॉल्ड टाइमिंग. एंड स्पेसिंग क्या कहता है कि किस तरह से इंडिविजुअल फ्रेम्स को हम प्लेस्ड किए हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिंग. और ये दोनों ही टाइमिंग एंड स्पेसिंग दोनों ही जो प्रिंसिपल हैं एनिमेशन का, वो लॉ ऑफ फिजिक्स को ये क्या करते हैं, अबाइड करते हैं, फॉलो करते हैं, कि फिजिक्स का जो लॉज हैं उसको ये क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं. देयर इज ए टाइम एंड स्पेस फॉर एवरी नेचुरल एक्शन विच मेक्स द रियलिज्म. क्या है? हर नेचुरल एक्शन के लिए समय है दिया गया और स्पेस दिया गया है. अगर ये ऐसा नहीं होता है, देन the image or action will be seems like unrealistic, unnatural, like robotic. Let us consider this example. See here, let us consider this example. If a ball travel from left screen to right screen, 24 frames to be cover and that is the timing. यानी कि ए लेफ्ट है, ए हमारा राइट है, ठीक है. दिस इज द स्पेसिंग जो यहां पर मेंशन किया गया है. अब कह रहा है अगर बॉल को लेफ्ट से राइट की ओर ट्रैवल करना है तो उसको 24 फ्रेम्स को
नंबर ऑफ फ्रेम्स टोटल कितना है 24 बिटवीन टू पोजेस. पोजेस क्या है हमारा लेफ्ट एंड राइट. वी हैव अ टू पोजीशन लेफ्ट एंड राइट. दिस वन इज द लेफ्ट पोजीशन, दिस वन इज द right position, and between two position we have 24 frames. That refers the timing. So it takes 24 frames for the ball to reach the side of the screen. That means left to right. Clear? So see how this image is showing. We have left and right. बॉल का फ्रेम्स दिखाया गया यहाँ पर, स्पेसिंग भी यहाँ पर दिखाया गया है. सो इस तरह से हमारा टाइमिंग एंड स्पेसिंग प्रिंसिपल जो है एनिमेशन में काम करता है. नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रिंसिपल कॉल exaggeration. Exaggeration. So this is the next principle for us. Exaggeration. Exaggeration क्या कहता है? Exaggeration is used to push movement further and add more appeal to an action. यानी कि this principle helps in animation to add more appeal or more action. By using this principle, we are able to add more appeal or more action in animation. This type of a principle mostly used for the cartoony movement. See here, it's action, this image. See, eyes is coming out. So this is the exaggeration. So by using this principle, we are able to add more appeal or action in the animation, and this type of a principle mostly we are using in the field of cartoon. Next we have point inside the exaggeration says that it should be implemented to some degree, else otherwise it will be unnatural. कहते हैं ना ज़्यादा हो गया वो ज़्यादा दिखने लगेगा. सो कुछ डिग्री तक ही, कुछ मतलब कुछ हमें जितना लगा, मतलब इसका प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके एनिमेशन में बनाना उतना ही करना है. ज़्यादा करने से क्या होगा हमें, मतलब वो फिर हमें जो कहते हैं ना अनरियलिटी महसूस होना शुरू हो जाएगा हमें. सो द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एग्जैगरेशन एम्प्लॉयड बाय डिज्नी वाज टू रिमेन ट्रू to reality. Dear friends, kindly try to understand this point. क्या कह रहा है? क्लासिकल डेफिनेशन क्या है डिज्नी के द्वारा दिया गया है, जो was to remain true to reality, just present in a wilder, no more extreme form. एक्सट्रीम फॉर्म में नहीं जाना, रियलिटी तक ठीक है. See this image. This image is the example of exaggeration. Jumping fox both side. Jumping frogs both side. So इसमें हमने अपील, व्हाट अपील यहाँ पर हम लोग देखने को मिल रहा है कि फॉक्स का किस तरह का हमारा जंपिंग हो रहा है. इस इमेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, cartoons. It's a eye movement. I hope it is clear. Next we have solid drawing. In solid drawing we are using the concept of 2D animation. It's a principle. By this principle, using the concept of 2D and making the animation in 2D, and we try to, they should strive to look it 3D. यानी कि जो हमने इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हम जो एनिमेशन बनाते हैं 2D में,
वो हमारी कोशिश रहती है कि उसको हम लोग 3D का लुक्स दे दें, दैट इज कॉल्ड सॉलिड ड्राइंग। फिर से मैं बताना चाहूंगा इस चीज को, सॉलिड ड्राइंग ये कहता है कि इस प्रिंसिपल के दौरान, इस प्रिंसिपल में कहता है क्या लिखा है, दिस प्रिंसिपल encourage animator to mindful of the fact that while forms may be presented in 2D but they should strive to look 3D। यानी कि हमारा जो एनिमेशन है 2D में बन रही है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगा कि इसमें हम 3D का फीलिंग डाल दें, दैट इज कॉल्ड सॉलिड ड्राइंग। जैसे हम इस इमेज को अगर हम लोग लेंगे, पिक्चर को लेंगे, इस पिक्चर में भी हम लोग वही दिखाने का कोशिश किए हैं। यहाँ से आप शुरुआत कीजिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, बहुत सारे चेंजेस आपको नजर आएंगे। कोशिश किया गया है 2D इमेज को 3D लुक देने के लिए, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिड ड्राइंग। Next we have appeal. This is the last principle, appeal. According to this principle, not all characters should be appealing. इस प्रिंसिपल के अनुसार एनिमेशन में जितने भी हम लोग कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, should not all should be appealing. But as per this principle, हमें कोशिश करना है, कोशिश एनिमेटर करता है कि वो अपीलिंग को उत्पन्न करे। यानी कि इस प्रिंसिपल के अनुसार एनिमेटर का हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो भी पिक्चर्स या जो भी हम लोग उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसमें एक अपीलिंग फीलिंग को हम डालें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि प्रिंसिपल ओरिजिनली instructed animator to make sure that the character they designed for their animation had charisma or appeal. That means the character must have charisma or appeal while looking itself. So this is the last principle of animation. So appealing principle says that it's helping the animator while preparing the animation to provide appealing sense inside the animation, or to provide appealing sense to the characters in the animation video. So that is the principle of the appeal. So appeal principle के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इस appealing sense को हम लोग उत्पन्न करते हैं, देते हैं कैरेक्टर्स को, डालते हैं। Let's see this example. Both example. Let's consider this example, both example, both image. What is the appealing for here? Waving his hands. That means indicating something. This is the appeal. And see here, face cutting, both. Here look, standing style, everything is appealing. So this is the last principle of animation. I hope it is clear. So इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें हमने टोटल 12 प्रिंसिपल को देखें, और ये जो 12 प्रिंसिपल जो हमारे पास दिया गया है, वो उन्होंने हमें डिज्नी एनिमेटर्स ने दिए हैं 12 प्रिंसिपल, जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, जिनका नाम ओलियो जॉनस्टन है एंड फ्रैंक थॉमस है, जिन्होंने अपने बुक में इस 12 प्रिंसिपल का इस्तेमाल किए हैं, जिसका नाम, बुक का नाम है इलस्ट्रेशन ऑफ लाइफ डिज्नी एनिमेशन। ये बुक सबसे पहले रिलीज कब हुआ था? 1981 में। So based on this book, or based on this Disney animators, I discussed 12 basic principles of animation. I covered all 12 one by one with the help of some illustration
with the help of some images, and I believe that it is clear for you and it's make easy to understand. Thank you.